Dear student, today I will be discuss the social, economic, religious and political life of Mesopotamian. Mesopotamian civilization was rich in wealth, city life, literature, mathematics and astronomy. One by one, three civilizations flourished there. These included Sumerian, Babylonian and Assyrian civilization. These civilizations are collectively known as the civilization of Mesopotamia. Social life. Mesopotamian society was divided into three classes. The first two classes consisted of higher people. People of these classes lived in good houses, wore good clothes, and enjoyed several privileges. It was a small section of society and had a major share of the wealth. People of the third class were slaves and they lived in herds. Women had a lower status in Mesopotamian society. Nature of the family was nuclear in Mesopotamian society. Nuclear family is that family which includes a husband, his wife and their unmarried children. A declaration was made about the procedure of marriage. After that, the bride's parents gave their consent to the marriage. Then a gift was given to the bride's family by the groom's family. Gifts were exchanged by both parties after the wedding. Both the parties used to eat together and offer together in a temple. The bride was given her share of the inheritance by her father when bride's mother-in-law came to fetch her. Sons used to inherit the house, herds, fields, etc. of the father. सुमेरिया, बेबीलोनिया और असीरिया की सभ्यता को मिलाकर मेसोपोटामिया की सभ्यता का नाम दिया गया है। मेसोपोटामिया का समाज तीन वर्गों में बटा हुआ था। पहले दो वर्ग उच्च लोग शामिल थे। इन वर्गों के लोग अच्छे मकानों में रहते थे, अच्छे वस्त्र पहनते थे और उन्हें कई प्रकार के विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। ये वर्ग संपन्न वर्ग था और धन संपदा का अधिकतर भाग उपभोग करता था। तीसरा वर्ग दास था जो झोपड़ियों में रहते थे। मेसोपोटामिया में समाज स्त्रियों का जो स्थान था वो निम्न था। मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को आदर्श परिवार माना जाता था। एकल परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे शामिल होते थे। फिर भी विवाहित पुत्र और उसकी पत्नी अपने माता पिता के साथ भी रहते थे। परिवार का मुखिया पिता होता था। विवाह की जो व्यवस्था थी उसमें विवाह करने की इच्छा के बारे में सर्वप्रथम घोषणा की जाती थी। वधू के माता पिता इसके लिए अपनी सहमति देते थे। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते थे। विवाह की रस्म पूरी होती थी और पूरी होने के बाद दोनों पक्ष उपहारों का आदान प्रदान करते थे। वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे और मंदिरों में जाकर भेंट चढ़ाते थे। जब नववधू को उनकी सास लेने आती थी तब वधू को उसके पिता द्वारा
उसके उत्तराधिकार का हिस्सा दे दिया जाता था, परंतु पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को ही मिलते थे। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मेसोपोटामियंस was very prosperous. Mainly, people of Mesopotamia engage in agricultural activity. Agricultural activity was main activity of the Mesopotamia. Agriculture developed as dams were constructed across rivers for irrigation. They knew the use of tin, copper and bronze. They knew how to weave cloths, construct buildings, make ornaments and several other articles. They also traded with their neighboring country. So agricultural work, crafts work and trade work, these three are very important in Mesopotamia, and mostly people involve these type of economic activity. मेसोपोटामिया के लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। ज़्यादातर लोग कृषि कार्य करते थे और कृषि भी काफ़ी उन्नत थी। वहाँ के लोगों ने सिंचाई के लिए नदियों पर बांध बनाए हुए थे। वे टीन, तांबे और कांसे के प्रयोग से भी परिचित थे। वे अच्छे शिल्पी भी थे। उन्हें कपड़ा बुनना, भवन, आभूषण तथा अनेक प्रकार की चीज़ें बनानी आती थीं। वे अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार भी करते थे और इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया की जनता मुख्य रूप से 3 प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में शामिल थी। ज़्यादातर लोग कृषि कार्य और उसके बाद शिल्पकला और फिर व्यापार से जुड़े थे। और इस तरह से मेसोपोटामिया की समाज के लोगों का आर्थिक जीवन और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जीवन काफ़ी उन्नत और विकसित दिखाई देता है। रिलीजियस लाइफ, Mesopotamians worshipped many gods and goddesses. They made their idols and placed them in temples. Every town had its own god and goddesses. Sumerians called their temples ziggurat. Their main gods were sun, moon and the sky. The main god of Babylonians was Marduk and goddess was Ishtar. Asur was the major god of Assyrians. Priests held a respectable place in the society. मेसोपोटामिया के लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। प्रत्येक नगर का अपना संरक्षक देवता होता था। वे इनकी मूर्तियां बनाकर उन्हें मंदिरों में स्थापित करते थे। सुमेरी लोग अपने मंदिरों को जिगुरत कहते थे। जिगुरत नगर के पवित्र क्षेत्रों में खासतौर से ऊंची पहाड़ी पर ईंटों से बनाए जाते थे। उनके प्रमुख देवता सूर्य, चंद्रमा, आकाश, वायु आदि थे। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। अनेक देवताओं की संख्या हजारों में थी। बेबीलोन के लोग मुख्य रूप से मार्डुक और देवी ईस्टर की पूजा करते थे। असीरिया सभ्यता के लोगों के मुख्य देवता का नाम असुर था। समाज में पुजारियों का बड़ा प्रभाव था और उनका सम्मानजनक स्थान था। तो इस तरह से देखते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग बहुदेववादी थे और वे कई प्रकार की देवी देवताओं की पूजा करते थे। पॉलिटिकल लाइफ,
There were repeated conflicts over land and water in early Mesopotamian countryside. If there was continuous warfare in a region, then the successful chiefs had to oblige their followers by distributing the loot. They also took prisoners from the defeated groups to employ them as their servants or guards, so they could increase their influence and control. But the victorious war leaders were not permanent chiefs of their communities. Leadership of a community kept on changing. These chiefs came to be known as kings at a later stage. The king began to pay attention towards the well-being of the community. Consequently, new institutions or practices were created. He began to offer precious booty to the gods. It beautified the community's temples. He sent men out of the faith, find stones and metals for the benefits of the god and community, so that the temples could be beautified. He organized the distribution of temple wealth in an efficient way by accounting for things that came in and went out. He encouraged the settlement of villagers close to himself. People began to feel safe living in close to another. मेसोपोटामिया के तत्कालीन गांवों में भूमि और पानी के लिए बार बार झगड़े हुआ करते थे। जब किसी क्षेत्र में दो समुदायों के बीच लंबे समय तक लड़ाई चलती थी, तो जीतने वाले मुखिया अपने साथियों एवं अनुयायियों के बीच लूट का माल बांटकर उन्हें खुश कर देते थे और हारे हुए समूहों के लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे। वे उन्हें अपने चौकीदार या नौकर के रूप में इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार वे अपना प्रभाव अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेते थे, परंतु युद्ध में विजयी होने वाले ये नेता अस्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बनते थे। समुदाय का नेतृत्व बदलता रहता था और यही चलकर आगे राजा के रूप में नेतृत्व के रूप में आया। समुदाय का कल्याण पर जोर देना राजा का मुख्य उद्देश्य होता था। राजा विजेता मुखियाओं के रूप में देवताओं को भी बहुत बहुमूल्य भेंट अर्पित करनी प्रारंभ कर दी। इसमें समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ी। राजा का स्थान भी ऊंचा हुआ, लेकिन समुदायों की सुरक्षा का प्रबंध और उसकी जिम्मेवारी प्रभावशाली राजाओं के पास प्राप्त होने लगा और इस तरह से प्रभावशाली राजाओं ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए भी प्रोत्साहित किया। साथ साथ रहने से लोग स्वयं को अधिक सुरक्षित भी महसूस करने लगे। युद्धबंदियों और स्थानीय लोगों के लिए मंदिर तथा शासन के काम में भागीदारी अनिवार्य कर दी गई और इस तरह से एक राजनीतिक जीवन के रूप में सिस्टमेटिक लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ की शुरुआत हुई और इस तरह से वहाँ पर शासन व्यवस्था समुचित रूप से विकसित हुई, जो आगे चल कर के राजाओं के द्वारा
नेतृत्व प्रदान किया गया।